इंडिया न्यूज गुजरात नो खास कार्यक्रम आपणो देश समाचारों शुरुआत करिए આપણે રાજસ્થાનના જયપુરથી। તો ગુરુવારે ગણેશ ચતુર્થીના બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ મોતી ડુંગરી શ્રી ગણેશ મંદિરથી ગઢ ગણેશ સુધી નીકળેલી પરંપરાગત શોભાયાત્રામાં ભાગ લીધો હતો। તેમણે શોભાયાત્રામાં ભગવાન શ્રી ગણેશની વિધિવત પૂજા કરીને રાજ્યની સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી। અગાઉ શર્માએ મોતી ડુંગરી શ્રી ગણેશ મંદિરની પણ મુલાકાત લીધી હતી। મંદિરમાં મહંત શ્રી કૈલાશ શર્મા દ્વારા મુખ્યમંત્રી શર્માનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ મંદિરમાં હાજર ભક્તોને પ્રેમથી મળ્યા હતા અને તેમની શુભેચ્છાઓ સ્વીકારી હતી। જણાવી દઈએ કે આ પ્રસંગે સાંસદ મંજુ શર્મા સહિત વિવિધ જનપ્રતિનિધિઓ અને મહાનુભાવ હાજર રહ્યા હતા। તો બીજી તરફ વાત કરીએ આપણે તો મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે। હવે પીએમ કુસુમ યોજના હેઠળ સ્થાપિત વિકેન્દ્રિત સૌર ઉર્જા પ્લાન્ટ સાથે જોડાયેલા 3311 કેવી સબસ્ટેશન વિસ્તારોમાં અલગથી પ્રાથમિકતાના ધોરણે કૃષિ જોડાણો તાત્કાલિક જારી કરી શકાય છે। આ માટે મુખ્યમંત્રીએ કૃષિ જોડાણ નીતિ 2017માં સુધારાને પણ મંજૂરી આપી છે। રાજ્યના ત્રણેય વીજળી વિતરણ નિગમોને આ સંદર્ભમાં આદેશો જારી કર્યા છે। મુખ્યમંત્રીના આ નિર્ણય પછી હવે આવા સૌર ઉર્જા પ્લાન્ટની ક્ષમતા અનુસાર 33/11 કેવીમાંથી નીકળતા ફીડર પર કૃષિ જોડાણો માટે અરજદારોને પ્રાથમિકતાના આધારે અલગથી માંગપત્રો જારી કરી શકાય છે। માંગપત્ર સબમિટ કર્યા પછી અરજદારોને તાત્કાલિક પ્રાથમિકતાના આધારે જોડાણો જારી કરવામાં આવશે। હાલમાં કૃષિ જોડાણ નીતિ 2017 હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિર્ધારિત છેલ્લી તારીખ એટલે કે અનુસાર સામાન્ય શ્રેણીના કૃષિ જોડાણો માટે અરજદારોને માંગ નોંધો જારી કરવામાં આવી છે। માંગપત્ર સબમિટ કર્યા પછી જોડાણ આપવાની પ્રાથમિકતા મૂળ અરજી તારીખ મુજબ જાળવવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય શ્રેણીઓ ડ્રીપ ડિગ્ગી અથવા શહેરી વિસ્તારના અરજદારોના માંગપત્રો તાત્કાલિક પ્રાથમિકતાના ધોરણે આપવામાં આવે છે। અરજદારો માટે જોડાણ આપવાની પ્રાથમિકતા માંગપત્ર જે છે તે સબમિટ કર્યાની તારીખ અનુસાર જાળવવામાં આવે છે। તો હવે સમાચારોમાં આગળ આપણે વાત કરીએ રાજસ્થાનના આહોરની। તો આહોર વિસ્તારના પાવટામાં તાત્કાલિક રાજસ્થાન સરકારના બજેટ જાહેરાત 2021-22 હેઠળ 2,25,00,000ના ખર્ચે બંધાયેલા સરકારી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના નવા મકાનનું ઉદ્ઘાટન મુખ્ય મહેમાન કેબિનેટ મંત્રી જોરારામ કુમાવત અને ધારાસભ્ય છગનસિંહ રાજપુરોહિતની અધ્યક્ષતામાં વિધિવત વિધિ સાથે રિબન કાપીને કરવામાં આવ્યું હતું। જણાવી દઈએ કે કેબિનેટ મંત્રી કુમાવતે કાર્યક્રમને સંબોધન કર્યું હતું અને તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકારે આરોગ્ય સંબંધિત કેટલીક યોજનાઓ શરૂ કરી છે। સરકારનો હેતુ એ છે કે સામાન્ય લોકોને સમયસર આરોગ્ય સંબંધિત સુવિધાઓ મળે, જ્યારે સરકારે પશુ આરોગ્ય સંબંધિત કેટલાક પગલાં પણ લીધા છે અને પાવટામાં ટૂંક સમયમાં પશુ ચિકિત્સા હોસ્પિટલ પણ બનાવવામાં આવશે। क्षेत्र में पावटा ग्राम पंचायत में आयुष्मान आरोग्य केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से भवन बनने से इस क्षेत्र में पावटा ग्राम पंचायत के गांवों के साथ में आसपास के क्षेत्र में के लोगों को भी चिकित्सा की पूरी सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क दवाई योजना है उनका भी लाभ उन लोगों को मिलेगा। पहले यहाँ के लोगों को दूर दराज हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब लंबी दूरी पे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ नजदीक में एक गांव में इनको पूरी की पूरी सुविधा मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम हर ग्राम पंचायत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे और वहाँ लोगों को पूरी की पूरी चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी सुविधा देंगे। ये सुविधा इसी क्षेत्र में जैसे माननीय विधायक जी के प्रयासों से यहाँ जो हॉस्पिटल का ये काम हुआ है, तो ये आहोर के क्षेत्र में और भी एक उदाहरणीय है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं
સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના સંભલની તો સંભલમાં જામા મસ્જિદ કેસમાં ન્યાયિક પંચના અહેવાલ લીક થવાના કિસ્સામાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ પક્ષો સામસામે આવ્યા છે. વિવાદિત જામા મસ્જિદ ઇંતજામિયા સમિતિના વકીલ શકીલ વારસીએ રિપોર્ટમાં હિન્દુઓ લઘુમતી હોવાની માહિતી ઉપર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા છે. ये आबादी का जो घटना बढ़ना है वो केवल और केवल उनके कारोबार और रहने सहने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ उनका कारोबार चल जाए, जहाँ सुविधाजनक रह सकता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो कोई बात न हुई कि 45% या 15% नहीं। बहुत से इलाकों में मुसलमान जो है कम हो गए, तो इट नेवर मीन के जो है वो किसी कारण से कम हुए, केवल और केवल जो है वो कारोबार और रहने सहने। सच तो है, देयर आर सो मेनी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, religious evidence, there are so many evidence, but at a time of evidence नहीं है मुश्किल। देखिए उनका विवाद तो आपस का रहा है और मरता हमेशा कमजोर आदमी है, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू ने ही सफर किया है और वो ही भागा है। और देखिए एक मैं आपके लिए एक इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है वहाँ दंगे ही नहीं हुए हैं, देश बटा है, तो एक देश के दो देश हुए हैं। हमें जनपद संभल की शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल गेट पर, और यह मस्जिद बड़ा सुर्खियों में है। यहाँ पर 19 नवंबर 2024 के लिए कैला देवी के महंत ऋषि राज द्वारा यह दावा किया गया था कि यह एक हरिहर मंदिर है। इसकी सर्वे उसी दिन इसकी सर्वे हुई, लेकिन उसके बाद 24 नवंबर के लिए पुनः इसकी सर्वे हुई। उसी दिन यहाँ पर दंगा हो गया और इसमें लगभग 5 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग इसमें 96 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं। उनकी अभी उनकी चिन्हित तभी नहीं की, उनकी पहचान भी नहीं हो चुकी है, लेकिन अब तक 96 लोग इसमें जेल जा चुके हैं। इसमें जनपद संभल के जो सपा सांसद जियाउर रहमान पर्क जो थे, उनको भी इसमें दोषी माना गया था। उन पर भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और इस यहाँ के जो सदर विधायक थे इकबाल महमूद, उनके बेटे सोहेल इकबाल को भी उसमें शामिल किया गया था, लेकिन उनको उनकी साक्ष्यों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो शाही जामा मस्जिद है, यह बिल्कुल इसके ठीक सामने यह जो इतने भी ये जो घर हैं, ये सब हिंदू कम्युनिटी के घर हैं। इधर इस साइड में जितने इधर जाएंगे तो ये सब हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। अगर इस शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल पीछे अगर हम जब की बात करेंगे तो सभी लोग यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अब अगर उस मंदिर के हम चौतरफा बात करें तो कोई भी हिंदू उस मंदिर के चारों तरफ कोई भी हिंदू कम्युनिटी का लोग नहीं रहता है, ना ही उसकी देख रेख के लिए कोई वहाँ पर है। लेकिन उसके कपाट खोल दिए गए हैं, उसकी सेवा भाव वहाँ पर चल रही है, दीपक जलाया जा रहा है। लेकिन यह एक प्रशासन के माध्यम से ही वो सही हो पाया है। लेकिन अब वहाँ अगर बात करते हैं तो उस मंदिर के चौतरफा कोई भी हिंदू कम्युनिटी का आदमी वहाँ पर नहीं रहता। राय सती के पास कोई भी आदमी नहीं रहता। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो जनपद संभल के शहर में हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक इमारतों के पास जो इमारतें हैं वो हिंदू कम्युनिटी की हैं, लेकिन उन कम्युनिटियों उस ऐतिहासिक इमारतों के पास कोई भी हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं रहता। यह शाही जामा मस्जिद का बोर्ड मेरे पीछे ये लगा हुआ है, इसी के ठीक हम सामने हैं। और इधर जो पीछे मेरे सामने पीछे हैं ये सब हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इधर ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए रजनीश यादव, संभल। મહારાષ્ટ્રના ગામડાઓ આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. નાગપુરનું 7 નવરી ગામ દેશનું પહેલું સ્માર્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ ગામ બન્યું છે. છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં પાણીની અછતને પહોંચી વળવા માટે પાણી પુરવઠા પ્રોજેક્ટનું કામ પૂર્ણ થવાનું છે. દેવેન્દ્ર ફડણવીસની સરકાર રાજ્યના નાગરિકો માટે સતત જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ યુવાનો માટે રોજગારલક્ષી શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે, ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે રાજ્યની મહિલાઓને ખાતરી આપી રહ્યા છે કે લડકી બહેન યોજના ચાલુ રહેશે. નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવાર રાજ્યમાં માળખાગત સુવિધાઓના વિસ્તરણ અને નિર્માણ અંગે સમીક્ષા બેઠક લઈ રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રની મહાયુતિ સરકાર પ્રધાનમંત્રી મોદીના આત્મનિર્ભર ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં રોકાયેલી છે। ત્યારે ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તેમના ઘરે ગણપતિની પૂજા કરી અને રાજ્ય માટે સુખ અને સમૃદ્ધિની કામના કરી હતી। જુઓ એક ખાસ અહેવાલ। नागपुर के गांव 7 नवरी की पहचान आज देश के स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव के रूप में हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गांवों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए शुरू की गई इस अभिनव पायलट परियोजना से ग्रामीणों का जीवन बेहतर और आसान हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाकर किसान फसलों पर सेंसर और ड्रोन के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्मार्ट लाइटिंग की मदद से बिजली का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। आपल्या देशातल्या वस्तू वापरणारा भारत ते स्वप्नही पूर्ण होणार होतं आणि म्हणून लगेच आम्ही त्यांना सांगितलं पायलट प्रोजेक्ट तुम्ही हातामध्ये घ्या। आणि मग हा पायलट प्रोजेक्ट कुठे घ्यायचा तर अर्थातच तो नागपूरला घ्यायचा। आणि मग नागपूरमध्ये कुठे घ्यायचा तर तो सातनवरीला घ्यायचा। अशा प्रकारचा निर्णय आपण केला। छत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति योजना शहरी विकास के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत बनाई जा रही इस परियोजना का करीब 82% काम पूरा हो चुका है। अगले 25 सालों तक 24 घंटे लगातार जलापूर्ति होती रहेगी। परियोजना के पहले चरण के लिए 26 MLD जल आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जल शोधन केंद्र का उद्घाटन और जल पूजन किया। पण मला या गोष्टीचा आनंद आहे की त्यानंतर ज्यावेळी पुन्हा शिंदे साहेबांचं सरकार आलं त्यावेळी आपण या योजनेला अमृत योजनेचा भाग केलं होतं आणि माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी देशभरातल्या शहरांकरता पाण्याचा पुरवठा आणि मलनिस्सारण याकरता अटल अमृत योजना सुरू केली आणि त्यातनं हजारो कोटी रुपये हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला देखील त्यांनी दिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ने दुनिया भर में क्रांति पैदा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में सिम्बायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ई कॉमर्स और मार्केटिंग समेत कई क्षेत्रों में एआई की मांग तेजी से बढ़ रही है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखकर अपना भविष्य बना सकते हैं। एआई शिक्षा से छात्रों के लिए रोजगार के नए द्वार खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे में सिम्बायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट को देश में एआई क्रांति को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एआई के बारे में सीखकर इस तकनीकी क्रांति में आगे बढ़ने का यही समय है। टुडे व्हेन वी आर एट द वर्ज of a new tsunami, which is artificial intelligence, I think we as Indians have capability to withstand this tsunami. And for that, we require best of the institutions in the space of artificial intelligence. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडकी बहन योजना के जारी रहने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सरकार 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देती है। अब तक प्रदेश भर से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। तुम्हाला फक्त 1,500 रुपये देऊन थांबणार नाही। आम्ही आमच्या लाडक्या बहिणींना लखपती बनवणार आहे, लखपती। आणि म्हणून लोक आताही म्हणतात की लाडकी बहीण योजना बंद होणार। तुमचा लाडका भाऊ सांगतो, हा एकनाथ शिंदे सांगतोय
ही लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोल्हापुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शहर में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। सरकार का मकसद कोल्हापुर को पर्यटन केंद्र के रूप में और अधिक समृद्ध करना है। कोल्हापुर में विकास परियोजनाओं के तहत कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, कोल्हापुर एयरपोर्ट का विस्तार और कोल्हापुर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोल्हापुर में छत्रपति संभाजी महाराज के आदर्शों को भी नमन किया। काम करत असताना माझा कोल्हापूर जिल्हा हा राज्यातील एक प्रगत, पुरोगामी, सुधारणावादी विचारांचा जिल्हा आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा हा विचार, सामाजिक न्यायाचा विचार याच मातीमध्ये पहिल्यांदा असला. माझा मागासवर्गीय बांधवांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद याच भूमीत झाली. गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए परिवार समेत गणपति की पूजा अर्चना की और महाराष्ट्र की सुख, शांति और विकास की कामना की। હવે સમાચારોમાં આ તરફ આગળ વાત કરીએ આપણે ગ્રેટર નોઈડાની, તો ગ્રેટર નોઈડામાં મૃત્યુનો ધંધો પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે. ડિગ્રી વગર, નોંધણી વગર દર્દીઓની સારવાર કરતા ક્વાક ડોક્ટરો ખુલ્લેઆમ લોકોના જીવ સાથે રમી રહ્યા છે. અને આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે આ રમતના વાસ્તવિક ખલનાયકો એ જ લોકો છે જેમની પાસે કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી છે. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ તમને આ સમગ્ર રમતનું વિશિષ્ટ સત્ય બતાવી રહ્યું છે. જો આ એક ખાસ અહેવાલ. ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में 2 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के बाद तीनों की दुकानें सीज कर दी गई। कारण साफ था, न इनके पास एलोपैथिक इलाज की डिग्री थी, न ही रजिस्ट्रेशन। फिर भी धड़ल्ले से मरीजों को दवाइयां बांट रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद ये सीज की गई दुकानें फिर से खुल गई और वही झोला छाप डॉक्टर अब दोबारा से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन्होंने सिस्टम की सच्चाई खोल कर रखी। ये वही क्लिनिक है जिन्हें सीज किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से एलोपैथिक दवाइयाँ दी जा रही, ड्रिप लगाई जा रही और मरीजों का इलाज उसी तरह हो रहा है जैसे पहले हो रहा। खलनायक कौन है? अब सवाल ये है कि जब दुकान सीज हुई तो दोबारा खुली कैसे? इस सवाल के पीछे जो नाम सामने आए वही इस खेल के असली खलनायक है। वहाँ पे आईजीआरएस पे शिकायत के अनुसार वहाँ पे हम लोग उस दिन एक उसका सघन अभियान चलाए, जिसमें डॉक्टर हबीब के नाम से जो आईजीआरएस पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत थी, हम लोग वहाँ गए और सघन अभियान में 2 हमको और भी क्लिनिक खुली मिली, जिसको हमने सीज किया। डिप्टी सीएम ड्रेस लैब, काम झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई का, नोडल अधिकारी पर ही संरक्षण देने का आरोप है। शरद अस्थाना, जिन्हें कार्रवाई में नामित किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती का आरोप। राकेश ठाकुर, संविदा पर तैनात कर्मचारी, लेकिन रुतबा ऐसा कि सीएमओ भी इसके सामने बौने लगे। गुर्गों के जरिए झोला छाप डॉक्टरों पर छापेमारी करवाता है और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें खुला छोड़ भी देता है। राकेश ठाकुर का खेल, राकेश ठाकुर का जलवा इतना है कि सीएमओ ऑफिस के बाहर बाकायदा उसके नाम की प्राइवेट प्लेट भी लगी हुई। वो खुद को सरकारी कर्मचारी कहलवाता है, लेकिन असल में वो संविदा पर रखा गया एक क्लर्क है। जबकि इंडिया न्यूज की टीम ने सवाल पूछा तो राकेश ठाकुर बौखला गया और कैमरे के सामने बदसलूकी करने लगा। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये भी सामने आया कि सबसे पहले आईजीआरएस और सरकारी वेबसाइटों पर फर्जी शिकायतें डाली जाती हैं, फिर छापेमारी कर दुकानों को सीज किया जाता है और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें दोबारा खोल दिया जाता है। यानी भ्रष्टाचार का पूरा सिंडिकेट है, जहां मरीजों की जान से ज्यादा मायने रखता है
पैसा। गौतम बुद्ध नगर में झोला छाप डॉक्टर लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में तमाम झोला छापों को जिला सीएमओ ऑफिस के नोडल अधिकारी जयसलाल और उनकी टीम में तैनात तथाकथित प्राइवेट क्लर्क राकेश ठाकुर का संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर तैनात जो छापेमारी करती है झोला छापों की टीम, उसमें तैनात सरहद अस्थाना भी इस खेल में शामिल हैं। नोडल अधिकारी जयसलाल की संरक्षण की वजह से ही लगातार जो झोला छाप हैं वो एक बार कार्रवाई होने के बाद दोबारा से सेटिंग करके दुकान खोलने में कामयाब हो जाते हैं। मैं इस समय नोएडा में सीएमओ ऑफिस में हूं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे सीएमओ ऑफिस है, जहां सीएमओ बैठते हैं नरेंद्र कुमार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नोएडा में 2 अगस्त को दनकौर में 3 दुकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की दुकान सीज कर दी गई। लेकिन हैरान की बात यह है कि तकरीबन 1 सप्ताह के बाद जयसलाल और उनके राकेश, जो कि आयुष्मान के कार्ड के लिए यहाँ पर क्लर्क के तौर पर तैनात है, संविदा पर ये तैनात है, लेकिन इसे जयसलाल अपनी बाइट में सरकारी कर्मचारी बता रहे हैं, जबकि इंडिया न्यूज़ के पास पूरे सबूत हैं कि ये एक प्राइवेट कर्मचारी है। अब ये सवाल उठता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार जो झोला छाप डॉक्टर खुलेआम काम कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका देखने वाला कौन है? गौतम बुद्ध नगर से लेकर लखनऊ तक जयसलाल डिप्टी सीएमओ किस तरह से जनता को भ्रमित कर रहे हैं वो आप उनकी बाइट में भी सुन सकते हैं। लेकिन अब कार्रवाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। अधिकारियों के रवैया को लेकर जब इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले पर सीएमओ से सवाल किया तो उन्होंने मीटिंग में होने का बहाना बना दिया। वहीं डिप्टी सीएमओ जयसलाल कैमरे के सामने झूठ पर झूठ बोलते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि आरोपी डॉक्टरों ने एफिडेविट दिया है कि वे एलोपैथिक इलाज नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत तस्वीरों में साफ दिखाई दी। सीज की गई दुकानें खुल चुकी और मरीजों का इलाज जारी। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी मरीज की जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या डिप्टी सीएमओ जयसलाल या प्रशासनिक अधिकारी या फिर वही संविदा कर्मचारी? नोएडा में झोला छाप डॉक्टरों का इलाज लोगों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़। सिस्टम के साथ जिम्मेदार अफसर ही जब इन मौतों के सौदागरों के साथ साझेदार बन जाए तो सोचिए आम जनता किस पर भरोसा करे। इंडिया न्यूज आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता है, क्या सरकारी कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर सिस्टम सचमुच झोला छाप माफियों का हमसफर बन चुका है? इंडिया न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से अकरम खान की रिपोर्ट। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.